हम्म,
Hello everyone. Very good evening. Am I audible everyone? Type yes in the chat box. Okay. Amazing. So, कौन सी सिटी से हो? Please type your city's name in the chat box. Very good evening. Valsad, Hyderabad, Bangalore, Nagpur. Okay. ओके सो कितने लोगों को विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है एक्चुअली उनको पता है टाइप यस इन द चैट बॉक्स देव देवनगरी भरूच ओके यू हैव अ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी 3 months ago ओके ओके सो एवरीबडी इज मेजोरिटी आर लाइक जिन इसको पता है कि मुझे विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है एवरीबडी अंडरस्टैंड हिंदी ओके 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 आई विल ट्राई मेजोरिटी हिंदी वाले हैं आई विल ट्राई टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज ओके नो इश्यू okay so let's begin with the informative webinar today and all the curious people you will love today the seminar okay let's start education is a key to getting the maximum outcome in any therapy ठीक है so basically vitamin B 12 deficiency it's like a spreading like a pandemic agree type A in the chat box every home one people suffering from the vitamin B 12 deficiency ओके सो यहाँ से जो भी आपके पास क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि एक्चुअली मीथ क्या है बी 12 का फैक्ट्स क्या है ताकि आप भी आपके फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स लव्ड वन उसको एक्चुअल इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड कर सको ठीक है बिकॉज सभी ही जो मीथ्स चल रही है वो सुन सुन के मुझे बहुत इरिटेशन होता है ओके So welcome to all the action takers and for taking a great decision to joining this webinar. First of all, this is the one step towards your transformative health. Okay. So first of all, make your cameras on, mute yourself. Actually, I have muted all. Okay. And sit in a peaceful and comfortable place for 90 minutes. And keep a diary, pen, and water bottle with you so you don't get distracted. And be focused, keep patience. Your queries will be responded in the Q&A session at the end of the webinar. Okay? Yeah. So what we will discuss today, let's just give you the brief summary about this. We will discuss what is vitamin B 12 deficiency, myths about vitamin B 12 deficiency, why it's so common nowadays, how I cure my vitamin B 12 deficiency in the 90 days. Okay? And special discount for the live registration. Yeah. So first of all, I will introduce myself. Myself, Dr. Rachna Dave. I'm from Ahmedabad, Gujarat. I'm author of the book called Vitamin B 12, Truth Behind Deficiency and founder of The Public Wellness, Holistic Health and Wellness brand. Okay, I'm a consultant physiotherapist and working in the field since 11 years. Okay, so कितने लोगों ने
यहाँ पे इंजेक्शंस लिया है विटामिन B12 का, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। See, this is a discussion or interactive kind of a webinar, okay? So you don't get bored. And yeah, okay. Yes, me too. And who actually, hate to take injections and wanted to get rid of these injections because I just tired of taking the painful injection every time. Like I am very fearful of taking the injection. I have taken so many injections, so I just frustrated with the injections. Okay. Okay. So whenever your B12 phase is going on, frequently either you have to take the pills or either every month or whatever your doctor suggests, you have to go for to take the painful injections, right? So who is here? एक्चुअली यहाँ पे जो भी आए हैं उनको ब्रीफ थोड़ी ना थोड़ा मेरे बारे में पता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हु इज इंटरेस्टेड टू नो माई जर्नी? If you allow me, then only I will share my personal experience. Okay. Samsung ji, what is your name? Just type your name because I am seeing the Samsung SM mobile name. Vinay ji. Okay. ठीक है. Getting it. Okay. So, like there is a reason behind, everything, whatever the person, every human being is doing. Why I have launched this, the Public Wellness, Holistic Wellness brand, because like I got burned when I was 3.5 year old. जब 3.5 साल की थी तब एक्सीडेंटल बर्न हो गया था। उसके बाद से जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवानी पड़ी एलोपैथी की, वो करवाई, एंड दैट इज नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम। बट उसके बाद की जो जर्नी स्टार्ट हुई 22 इयर्स की, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एवरी ईयर आई गेट इल, तो मेरा चाइल्डहुड पूरा हेल्थ में पूरा जीरो रहा, लाइक इलनेस, फ्रीक्वेंट इलनेस, वॉट एवर द मनी, big amount of money gone in the health. So that's why people are saying like health is a wealth. Okay, so if you maintain a good health and if you're blessed with the good health, you are a wealthiest person in today's generation. Okay, and that we will look ahead further in my webinar. ओके, सो उसके बाद इम्यूनिटी डाउन हो गई, एंड मार्केट में जितने भी डिजीज अवेलेबल है सारे कुछ ना कुछ सीजन में होते रहते थे। वो तो थे, एक ऑटोमिन स्किन डिजीज करके घर कर गया। 22 साल तक साल में 6 महीना आई यूज टू सफर फ्रॉम दैट ईची स्किन, एंड उसमें कॉटन के कपड़े भी पहनना इतना डिफिकल्ट हो जाता था। ठीक है, तो इतने सारे, और एज अ गर्ल अगर पिंपल भी हो जाता है तो वी गेट पैनिक। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्ट फेस, पूरे बॉडी पे स्किन के रैशेस होते थे, एंड आई हैव विजिटेड मोर देन 50 डॉक्टर्स 22 सालों में। इतने तो हो ही जाते हैं, ठीक है, ताकि इन होप कि कोई सॉल्यूशन मिले। ठीक है, सो आफ्टर सर्टेन years when I get education in the physiotherapy field, I have did my research कि भाई कैसे इसको ठीक करे, क्या किया जा सकता है। तो वो तो चल ही रहा था, और साइड बाय साइड लाइक कॉलेज में एक एक्सीडेंटल इंजरी हुई मेरे साथ, और उसमें आई हैव टू टेक द स्टेरॉइड्स, जो कि स्किन में भी लेते हैं, लेकिन वो जो पेन किलर के जो स्टेरॉइड्स थे, उसकी साइड इफेक्ट की वजह से मुझे विटामिन B12 डेफिशिएंसी आया। एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी मुझे 2 साल तक मैं सफर करी हूँ। ठीक है, तो 2 साल इट्स वेरी बिग फॉर मी। वाई? बिकॉज बोलते हैं ना कि नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वी कैन टेक द डिसीजन, वी लिव इन अ कंफ्यूजन एंड सैड मूड। ठीक है, तो एक होता है कि इंजन में ही प्रॉब्लम आएगा, तो हाउ वी कैन सर्वाइव। गेटिंग इट? सो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आर बिगर देन एनी अदर फील्ड। दैट्स द माई, बिकॉज स्किन डिजीज जो 22 साल तक था तो वो एक फिजिकली परेशान कर रहा था, उसके वजह से मेंटल होता था। लेकिन ये B12 जब कम होता है, ठीक है,
तो यहाँ मेंटल हेल्थ, हमारा बिहेवियर, इमोशनल हेल्थ, उस पे ज्यादा अफेक्ट करता है. एग्री? टाइप ए इन द चैट बॉक्स. सो 2 years आर लाइक इनफ फॉर मी कि भाई 2 साल बहुत है B12 के लिए. ओके. सो इसमें लाइक मुझे बहुत, मैंने डॉक्टर्स चेंज किए. एलोपैथी में तो जब डॉक्टर ने बोल ही दिया लाए मुझे एक बार, क्योंकि मैं थक गई थी. एवरी मंथ लाइक अल्टरनेट डे मैंने पिल्स ली, इंजेक्शंस लिया वीक में 2 बार. वॉट एवर द कोर्स मैंने कंप्लीट किया 1 साल तक. नेक्स्ट ईयर से क्या हुआ, इंजेक्शन लिया, 7 दिन उसकी इफेक्ट आती थी, फिर कुछ नहीं. फिर मुझे वेट करना पड़ता था 25 डेज तक कि कब मैं इंजेक्शन लेने जाऊं. ठीक है, क्योंकि सारे सिम्टम्स इतने परेशान करते थे. फिर मैंने परेशान, क्योंकि 21 की साल में मुझे विटामिन B12 था, 21 ईयर ओल्ड की एज में. तो आई एम वेरी वेरी यंग एट दैट एज. ओके. तब मैंने डॉक्टर को पूछा कि व्हाट इज द लाइक इसका सॉल्यूशन क्या है, कब तक मुझे लेना पड़ेगा. हर एक को होता है ना यार, कि ये कोई मजे लेने वाली तो बात नहीं है कि लाइफ टाइम इंजेक्शन ले. तब डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू टेक इंजेक्शंस फॉर लाइफ टाइम. और इसमें क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. एंड डायबिटीज वाले लोग डेली लेते हैं, तो मंथ में एक ही बार लेना है. एंड दैट हिट्स मी कि भैया लाइफ टाइम में ये इंजेक्शंस लेने तो नहीं आऊंगी. एलोपैथी में कुछ नहीं है तो दूसरी फील्ड में ट्राई करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ नेचुरल थेरापीज अवेलेबल, राइट. उसके बाद दो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स चेंज किए, बिकॉज एक आयुर्वेदिक से उल्टा फुल्टा हो गया. उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर मिले, उससे 70-80% क्लियर हो गया. एंड देन उसके साथ साथ मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि भाई आयुर्वेदिक डॉक्टर की भी जरूरत ना पड़े, एंड हाउ आई कैन मेंटेन द विटामिन B12 फ्रॉम माय रेगुलर फूड. वो मैंने पजल क्रैक कर दिया. ठीक है. बिकॉज मैंने एक सिंपल सोचा कि पहले तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं था 21 साल तक, उसके बाद ही क्यों आया. देयर इज समथिंग रॉन्ग. ओके. और उसके बाद अगर वो रूट कोज जो था उसको ही फिक्स कर दे, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो मेंटेन द विटामिन B12 फ्रॉम योर रेगुलर फील्ड. ना ही आपको एक्सपेंसिव वेलनेस सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है एवरी मंथ टू मेंटेन योर न्यूट्रिशन प्रोफाइल. बिकॉज वो भी मैंने ट्राई कर लिया. 3,500 के सप्लीमेंट्स आते थे, 15 दिन या 20 दिन चलते थे, तो मंथली अगर कॉस्ट निकालो तो 7,000-8,000 के पड़ते हैं अगर अच्छी ब्रांड में जाए तो. ठीक है. तब मैंने सोचा कि हेल्दी बॉडी को या हेल्थ अपनी मेंटेन करने के लिए क्या इतना एक्सपेंसिव है, इतना तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, खाने पीने से ही अगर आपकी हेल्थ सही रहे, दैट्स द चीज वो मुझे चाहिए थी. तो ऐसा सॉल्यूशन किसको चाहिए कि घर के ही खाने से आपका बॉडी पूरा न्यूट्रिशन ले पाए. टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि जिसको इस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए कि भाई घर के जो खाना खा रहे हैं रूटीन में, वो खा पी के सारे न्यूट्रिशन आपको मिलते रहे. अमेजिंग अमेजिंग. ओके ओके. ठीक है. बिकॉज ये तो लॉजिक है ना कि पहले तो कुछ नहीं था ना, अभी कुछ ऐसा हुआ होगा बॉडी में, उसके बाद ही डेफिशिएंसी आएगी. ठीक है, तो देयर इज अ लॉजिक. तो हमें ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है कि B12 बाहर से लेना पड़ता है, यू नो इसमें से मिलता है इसमें से नहीं मिलता है, ये सारी फालतू की बातें हैं. ठीक है. एंड दैट्स हाउ आई हैव क्योर्ड विद द यूज ऑफ हॉलिस्टिक अप्रोच. हॉलिस्टिक यानी कि बॉडी माइंड एंड सोल तीनों लेवल पे जब काम करते हैं तो नॉन क्योरेबल डिजीज भी क्योर हो जाते हैं. दैट्स द पावर ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच. ठीक है. तो ऑटोइम्यून स्किन डिजीज विच इज नॉट क्योरेबल इन द एलोपैथी साइंस, वो भी क्योर हो गया, एंड B12 भी क्योर हो गया. सो दैट्स द विन विन. ये मेरा सेकेंड बर्थ मैं कह सकती हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड. ठीक है. बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई होप कि मुझे एक अच्छी स्किन मिलेगी, जहाँ पे मुझे कोई इचिंग नहीं हो रही है, अच्छे से मैं शांत, मैं जी पाती हूँ. बिकॉज दैट्स द मोटो ऑफ माई लाइफ. हर एक के लाइफ में ना डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं. तो 22 साल तक जिसने इतना सफरिंग किया है, तो मैंने मेरा गोल बना दिया कि मैं तो मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ. ठीक है, 11 सालों से. एंड माई मिशन इज टू हेल्प 1 million people टू लिव द मेडिसिन फ्री लाइफ.
ठीक है, बिकॉज ये आपको पता नहीं है, जो गुजर रहा है उसको पता है कि एक मेडिसिन कितनी और बीमारियां लाती है। एग्री? ये अवेयरनेस है? Okay, so this is the thing, and this is the big victory I can say, that to overcome my health issues. Okay, because this is my journey कि मैं डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स विजिट, और मैंने वेटिंग रूम में काफी टाइम स्पेंड किया है। तो मैं डॉक्टर अभी बनी हूँ 11 सालों से, लेकिन मैं पेशेंट का रोल मैंने बहुत प्ले किया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट। वी आर वेरी डेस्परेट, हमें सिर्फ अच्छा सॉल्यूशन चाहिए ताकि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाए। ठीक है, शायद इसीलिए आई कैन अंडरस्टैंड मोर माय क्लाइंट्स पेन। ओके, सो नाउ दिस इज मी। जब मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, सम अच्छे डॉक्टर हैं, वो बहुत कुछ अच्छा सजेस्ट करते हैं कि भाई डू दिस दैट थिंग, बट आई जस्ट फोकस ऑन द 20% कि भाई मुझे दवाइयां दे दो ना। ठीक है, मुझे कुछ अपने आप को कुछ चेंज नहीं करना है, ना ही हेल्दी लाइफस्टाइल, ना ही हेल्दी हैबिट, एंड ना ही रूटीन। ठीक है, आई प्रोकास्टिनेट अ लॉट। आज करूंगी, कल करूंगी, ऐसे ऐसे कर साल साल बीत जाते हैं। ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू लीव द कंफर्ट जोन, एंड आई डोंट वांट टू चेंज द रूटीन। ठीक है, बिकॉज एक डिसिप्लिन, हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो बहुत डिसिप्लिन नहीं, लेकिन नियम तो होने जरूरी है। ठीक है, और कई सारे ने आप लोगों ने सोसाइटी में भी देखते होंगे, जो बंदे नियम से जीते हैं ना, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व दैट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और यहाँ पे कोई काम नहीं करता, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट व्हाट वी वांट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट, चलो पहले ये बात करते हैं एक्सपेंस शीट इफ यू आर वेटिंग फॉर योर प्रॉब्लम टू बिकम द वर्स। ठीक है, बिकॉज हम ना प्रिवेंटिव पे बहुत कम काम करते हैं। जब हमारे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन आप देख लो, आई एम 33 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन देख लो, कुछ भी डिजीज या हेल्थ प्रॉब्लम, मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द एवरी एज ग्रुप, वी आर ट्रीटिंग द एवरी जनरेशन। ठीक है, तो साइकोलॉजी की बात बता रहे, व्हाट वी हैव, व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, जितना डिजीज नहीं आ जाता, पूरा घिस नहीं जाता, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। ठीक है, ऐसा मत होने दो। ठीक है, बिकॉज बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, आपको कुछ हुआ है, डायग्नोज हो गया, फिक्स दैट फ्रॉम द रूट कोज एंड एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, बिकॉज अभी आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन रूट से निकल सकता है। ठीक है, एंड यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग, भाई कल करूंगा, टाइम नहीं है, ये है वो है। ठीक है, तो दैट इनवाइट ऑफ डिजीज। ओके, एंड उसके बाद फिर जो प्रोग्नोसिस बोलते हैं, प्रोग्नोसिस यानी कि आउटकम, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही प्रॉब्लम हुआ, फिक्स हो गया, 100% क्योरेबल कर सकते हो। ओके, सो नाउ टेल मी, इफ आई ऑल यू गेट द विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फ्री फ्रॉम सप्लीमेंट, तो आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ भी एंजॉय कर सकते हो। ओके, एंड सर्जरी कॉस्ट, MRI एक्सरे कॉस्ट, consultation fees for so many doctors. Okay, so this cost may become if you are not curing any disease in the early stage of the life. Okay, so that's the power of the prevention. Okay, so that's why the self investment is the best investment, and you can save a lot of money by learning about your health. अगर आपको अपनी हेल्थ को 50% भी मेंटेन करना आ गया, you can prevent so many lifestyle diseases. Okay, agree? ठीक है, okay, okay, okay. And these are the me after becoming the healthy version of 2.0 version of myself. Okay, I am action taker now. I take action immediately. I invest in myself, and that's helping me to survive in any phase of the life. Okay, and they are the ahead of the competitors because of their health. ठीक है, बिकॉज सी एवरीबडी गॉट अ 24 hours टाइम। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं दे मेंटेन देयर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। कुछ लोग होते हैं जिसका
एक ग्राफ बड़ा है, दूसरा ग्राफ छोटा है, ठीक है? तो हमें तो तीनों ग्राफ मेंटेन करना है, ठीक है? कोई एक ग्राफ ही बड़ा होगा और दूसरे दोनों ठीक-ठीक होंगे या तो बहुत कम होंगे, तो दैट विल अगेन कॉज़ यू अ स्ट्रेस, ठीक है? सो दैट्स व्हाई बी अ एक्शन टेकर, ठीक है? लीव द प्रोक्रास्टिनेशन. This is my journey as a holistic vitamin B12 coach, and I also keep taking the offline seminar in the institute. And this is my book, Vitamin B12 Truth Behind Deficiency, that is launched 2 years before globally. So this paper book can available on the Amazon. You can check it out if anybody is interested. Okay, this is my cute little daughter, and after she came into my life, my journey took a different path. Okay, she's so happy. See, this is the graph. Every year, the graph is increasing like a crazy. Okay, and it's worried. Why? I tell you, because यहाँ पे कुछ लोग होंगे, शायद उनके घर में भी बच्चों को भी स्टार्ट हुआ होगा. Because I am seeing the cases of the school going children, and it's worrisome. बिकॉज़ बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, इतनी यंग एज में प्रॉब्लम होंगे, तो ठीक है, उसका क्या होगा 30 की एज में? एग्री? ठीक है? सो आज से ही जो भी है, यहाँ से आप सीख के जाना. दिस इज़ माय मिशन आई हैव टोल्ड. ओके. द बेस्ट थिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इज़ टू हेल्प अनदर ह्यूमन बीइंग टू नो मोर. ठीक है? सो इट्स अ चेन वन टू मैनी. मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, बाहर जाके सच ही बताना जो है वो, ठीक है? एंड आई एम गारंटेड क्योरिंग द विटामिन B12 deficiency from roots. That's the solution I have. Okay. So here I just wanted to share some testimonial. Okay, not more than. I have so many testimonials. So you just can relate with the real life case. Okay. She is a IT professional, Nidhi Patel from Anand, and उनको भी vitamin B12 deficiency थी, and she get tired, fatigue, and tingling and numbness, and some stomach ache due to the vitamin B12 deficiency. And she just wonderfully implement all the things and just cured from the vitamin B12 in just 90 days. And now she is a mother of the beautiful babies. She is the yeah. Can you audible this? No. Okay. 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 1 minute. Stop. हेल्पफुल रहा. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट Now हूँ बाय audible? प्रोफेशन. आई एम 32 ईयर्स ओल्ड. मैं कह सकती हूँ कि मैं सबसे पहली स्टूडेंट थी या पेशेंट थी फॉर दिस B12 कोर्स डॉक्टर रचना के पास. उन्होंने पर्सनल अटेंडेंस और गाइडेंस से मेरा B12 लेवल नेचुरली क्योर किया है, इंक्रीज़ किया है वो लेवल, एंड जो अल्टीमेटली मुझे बहुत हेल्पफुल रहा ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट, स्पेशली ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी एज वेल. सो वेरी मच थैंक्स टू डॉक्टर रचना. And this is the amazing case study. ये आशीष कुमार है from London. एंड वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खा सकते थे. आई डोंट नो क्या हुआ था. पहले खा सकते थे, लेकिन लास्ट से 7 ईयर से उनका बंद था. ठीक है. एंड लाइक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब उन्होंने एनरोल किया था हमारे प्रोग्राम में. उसका न्यूबॉर्न बेबी था एंड एवरीथिंग. लेकिन उन्होंने ही सब कुछ इम्प्लीमेंट करके बहुत अमेजिंग केस स्टडी हमें दी. Yeah, okay. So when I gave a long time this all fasting, like 16-hour fasting or 14-hour, and doing this detox stuff, then I suddenly thought I should try this milk products. And when I tried it, Hmm. it didn't create any trigger or anything.
So previously, when I was doing it, it was like few cramps in the stomach or the loose motions the next day. But in the last week, I had like 4 days continuously, Very nice. whatever, like either basundi, like milk sweet, or yogurt, like curd. Yesterday had like curd rice and all the stuff, but nothing happened, touch wood. So I do not want to do like too much at the same time, but I want to periodically try in between. Period in between. Or Yeah, okay. So this is the So amazing case when study. B12 की pills ले रहे थे, लेकिन या लेकिन उसके बाद उनकी ये डेयरी प्रोडक्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और B12 भी चला गया, amazing, interesting case study. Type I in the chat box if you feel this is a great case study. Okay. So all the disease begin in the gut. ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आते उसको जो बोलते हैं, ठीक है, तो ऑल द डिजीजेस बिगिन फ्रॉम द गट, बिकॉज वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो भी खाना खाते हो अगर आपका गट सही नहीं है, ठीक है, तो आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, और इससे फिर डेफिशिएंसी चालू होगी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, इनडाइजेशन. Okay, so that's why everybody, our ancestors also says all the diseases begin in the gut. Okay, so this is the saying of the father of the medicine, Hippocrates जी का कहना है. Okay, so this is the digestive system और मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि क्या है इसमें, ठीक है. तो दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम. और विटामिन B12 के लिए क्या चाहिए बॉडी में? विटामिन B12 पहले तो फूड में से बनना चाहिए. उसके लिए क्या चाहिए? डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रही होगी तो ही वो B12 बना पाएगी, यानी कि यू हैव अ वेरी ग्रेट हेल्थ ऑफ स्टमक, ठीक है. सेकेंड थिंग इज B12 स्टोर्ड इन द लीवर. ओके, एंड लीवर मेक्स हेल्दी डाइजेस्टिव ज्यूस. ओके, सो इफ यू हैव अ लीवर प्रॉब्लम or unhealthy liver, okay, so that also the one of the causes of the vitamin B12 deficiency, ठीक है. सेकेंड थिंग इज कि इंटेस्टाइन. ओके, इंटेस्टाइन में मैंने जैसे ही बोला आपको, ठीक है, उसकी जो वॉल होती है, उसका जो स्किन होती है, हमारे लिप्स के इनर जो पार्ट होता है, इस तरीके की स्किन होती है, ठीक है. अगर वहां इतना कचरा जमा है, गार्बेज है, ठीक है, तो कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है. इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि भाई आई एम ईटिंग द विटामिन B12 रिच फूड, फिर भी मुझे विटामिन B12 है. मैं नॉनवेज खाता हूँ, नॉनवेज में से तो B12 बहुत अच्छा मिलता है, फिर भी मुझे विटामिन B12 है. तो यहाँ पे आपकी एक मिथ ब्रेक हो गई कि सिर्फ वेजिटेरियन को ही विटामिन B12 होता है. इट्स नथिंग लाइक दैट. ओके, मेरे प्रोग्राम में 2 काइंड ऑफ लोग एनरोल होते हैं, वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन. प्रॉब्लम कहाँ है? ये है रूट जो मैंने आपको बताया. Crystal clear, type C in the chat box. Okay, let's move further. अभी विटामिन B12 के लेवल्स नॉर्मली कितने होने चाहिए, ठीक है. सो 4 to 8 इयर्स की एज में 0.4 माइक्रोग्राम होने चाहिए. 9 to 13 ईयर की एज में 0.5 माइक्रोग्राम डेली की रिक्वायरमेंट है. 14 to 18 इयर्स में 0.9 माइक्रोग्राम एंड अबव 19 2.4 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, now understand what is the vitamin B12 in a very simple language. Okay, vitamin B12 is important for the brain function and the synthesis of the red blood cells. The metabolism of every cell in the body depends on the vitamin B12 as it plays a part in the synthesis of fatty acids and energy production. इसीलिए जब आपको B12 होता है, बहुत एक सिम्टम्स बहुत कॉमन है. आई गेट टायर्ड इजीली, मुझे वीकनेस लगती है, मॉर्निंग से ही थकान थकान लगती है. किस किस को सिम्टम्स है ये? टाइप कीजिए कमेंट में. किस किस को सिम्टम्स है? ओके, सो दिस इज द रीजन. एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत मेन रोल है विटामिन B12 का. ब्रेन हेल्थ में इतना बड़ा रोल है. अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी आपको, ठीक है,
और पिल्स और इंजेक्शन से मैनेज कर रहे हो तो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, मे बी थोड़े महीने या साल तक। उसके बाद वो मेडिसिन भी इफेक्ट देना बंद कर देगी, इंजेक्शन भी देना बंद करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर डीम लाइट के जैसे हम घूमते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हमारे इंजन का न्यूट्रिशन है। ओके, so this is a very informative video. Watch. Vitamin B12 is an essential nutrient that is necessary for DNA synthesis, energy production, and central nervous system function. Even though the vitamin is found in many foods, vitamin B12 insufficiency and deficiency are relatively common. This is often due to limited dietary intake, malabsorption, certain medical conditions, or the use of B12 depleting medications. Now, as the ability to absorb B12 from food declines with age, deficiency is more common in older adults. However, it is also common in pregnancy and can be seen in young adults and children. In this video, we are going to discuss about the most common presenting signs and symptoms of vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 deficiency can cause weakness, tiredness, or lightheadedness. Our body's cells need B12 to function properly. Deficiency in B12 or folate can cause megaloblastic anemia. This condition leads to the formation of large, abnormal, and immature red blood cells and impaired DNA synthesis. When our body doesn't have enough healthy red blood cells to carry oxygen to tissues, we are likely to feel weak and tired. But remember, these generalized symptoms can be seen due to many other reasons. Vitamin B12 deficiency can cause red, painful, and inflamed tongue. This condition is called Hunter's glossitis or Moller's glossitis. This can be an early sign of vitamin B12 deficiency. On oral examination, you can find stomatitis, xerostomia or dry mouth, chillosis, and bleeding from gum. Remember, glossitis can also be caused by deficiencies in other nutrients like folate, riboflavin, and niacin. Paresthesia in hands and feet. Paresthesia is a medical term that refers to a burning or pins and needles sensation in certain areas of the body like hands and feet. Many adults and kids who have B12 deficiency report experiencing paresthesia. Now, unfortunately, this symptom of B12 deficiency overlaps with symptoms related to diabetic neuropathy, in which there is nerve damage caused by high blood sugar that can cause pain and numbness in the extremities. People with diabetes taking metformin are at higher risk of developing B12 deficiency because this medication can reduce vitamin B12 absorption in the body. So, a B12 deficiency could be misdiagnosed as peripheral neuropathy in people with diabetes. As a result, many experts recommend that people taking metformin regularly should get screened for vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 deficiency is also associated with the risk of developing depression. Vitamin B12 is a necessary element for our central nervous system development. Now, having a low levels of vitamin B12 can cause elevated levels of sulfur-containing amino acid called homocysteine. High levels of homocysteine increases the oxidative stress, which is responsible for DNA damage and cell death in the body. Low or deficient B12 levels may lead to other medical conditions including psychosis and mood disorders. Difficulty concentrating and mental impairment. Vitamin B12 deficiency can cause concentration problem and it is more common in older people. But the good news is vitamin B12 related mental issues is treatable with adequate amount of vitamin B12 supplements. Gastrointestinal problems. A B12 deficiency may also cause diarrhea, nausea, constipation, bloating, gas, and other gastrointestinal symptoms. These issues can affect both adults and children. Vitamin B12 deficiency is responsible for frequent headache. In fact, headaches are among the most common reported symptoms related to B12 deficiency in both adults and kids. According to few studies, people with high vitamin B12 levels are 80% less likely to have migraines. Muscle cramps and muscle weakness.
B12 deficiency negatively impacts motor and sensory nerve function, which can cause muscle cramps and weakness. Impaired coordination. Ataxia or impaired balance and coordination is a neurological symptom that can be caused by B12 deficiency. As such, a person with B12 deficiency may have difficulty walking and balancing. Next is erectile dysfunction. Men with B12 deficiency may experience erectile dysfunction as a result of increased levels of homocysteine in the body. Vision disturbances. B12 deficiency may cause vision disturbances, possibly due to damage to the optic nerve. Alright, that's all for today. Amazing video, so that you can understand better. ठीक है, अभी समझ में आया? Clear? It's easy. Type in the chat box. ठीक है. Now let's learn what are the symptoms of vitamin B12 deficiency. ठीक है. So ये सारे symptoms majority होंगे कि सभी यहाँ पे जितने भी मौजूद है. Tingling and numbness, झंझनाहट बोलते हैं, mood swings, irritation, lethargy, back pain back pain यानी कि back pain, neck pain, any kind of aches and neck, because आपके muscles बहुत weak. और being a physiotherapist was I have observed, अगर B12 deficiency है और आप एक्सरसाइज भी करते हो जिमिंग, योगा, व्हाटएवर, या तो फिर फिजियोथेरेपी करवा रहे हो किसी के लिए, ठीक है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा. यानी कि एक्सरसाइज किसके लिए करते हैं कि मसल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे. लेकिन जिसको B12 होता है उसको क्या होता है कि जब की एक्सरसाइज तो 4, 5 या 6 आवर्स तक अच्छी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, फिर जैसे जैसे शाम होती जाती है फिर से वो रिड्यूस हो जाती है. और अगर 1-2 दिन स्किप हो गए तो अगेन यू फील लाइक कि भाई मेरी बॉडी तो आई गेट वीक, फिर से मुझे पेन हो रहा है, माय मसल्स मेरे लूज हो गए. तो दिस इज द बहुत बड़ा ये है. इसीलिए हम जो भी पेशेंट ट्रीट करते हैं उसको तो B12 और D चेक करवाते ही करवाते हैं, ताकि इंटरनल न्यूट्रिशन चाहिए होता है अगर एक्सटर्नल थेरापी हम देते हैं. ठीक है, एग्री? किसी को यहाँ पे है मसल वीकनेस और ऐसा? एवरीबडी हैज ऑब्जर्व्ड? Have you observed anyone? Amazing. Okay. ठीक है. So you have to fix your vitamin B12 अंदर से. ठीक है, तभी जाके आप ऐसे भी अगर एक्सरसाइज एक दिन नहीं करोगे तो भी इतने फिट रहोगे. So that is the power of vitamin B12. मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत रिड्यूस कर देता है. ठीक है, एंड ये सारे सिम्टम्स है कि B12 जिसको होता है दिस इज द फेस, एवरीबडी कैन रिलेट. ये चीटियां जैसा काटते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हेड में भी होता है, कहीं कहीं पे भी होता है. कंफ्यूजन, मेमोरी प्रॉब्लम. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 इन द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. दोनों में से ही मिलता है. ठीक है, तो ये मिथ निकाल दो. ठीक है, बिकॉज कहाँ पे प्रॉब्लम है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में. ठीक है, अदरवाइज भगवान ने सोर्सेस दोनों को दिए हैं. ऐसा नाइंसाफी तो नहीं करेगा ना कि वेजिटेरियन है तो तू सफर कर. एग्री? बिकॉज मैं ये बहुत ब्लेम करती थी अपने आप को कि यार ये मैं वेजिटेरियन हूँ, आई डोंट लाइक टू ईट नॉन वेज, और ये मुझे B12 लाइफ टाइम मुझे सफर करना पड़ेगा. ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे मुझे. लेकिन जब मैंने क्योर किया तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने ही खाने से आई कैन मेंटेन माय विटामिन B12. Okay, so that is a good news for the vegetarian people. You don't need to eat non-veg. ठीक है? Okay, so yeah, वेजिटेरियन में से मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में से विटामिन B12 मिलता है, सोया प्रोडक्ट्स में से मिलता है, योगर्ट में से मिलता है, एंड फर्मेंटेड फूड में से मिलता है. एंड नॉन वेजिटेरियन में लीवर, एग्स, फिश एंड मीट्स में से आपको विटामिन B12 मिलता है. अभी मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों विटामिन B12 पे इतना वर्क करती हूँ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग आई कैन वर्क ऑन. व्हाई आई चूज दिस विटामिन B12? पहले तो ये डायबिटीज के जैसा हो रहा है एंड मुझे ये इससे बचाना है. आपको क्यों बचाना है वो मैं आपको बता देती हूँ. बीइंग अ फिजियोथेरापिस्ट, आई एम अ ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापिस्ट, लेकिन मैंने न्यूरो में भी काम किया हुआ है 3 साल. ठीक है, उसमें न्यूरोपीडिया, चिल्ड्रन, एडल्ट, सब I have worked with that, and we spend almost 1 to 2 hours with our client.
इन फिजियोथेरापी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम यानी कि डेफिशिएंसी जितनी पुरानी होती जाती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज को इनवाइट करती है, सच एज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आपकी नर्व इतनी डैमेज हो जाती है बिकॉज आपको पता नहीं चलता, आप मैनेजिंग विद द पिल्स एंड इंजेक्शन सुपरफिशियली, क्योंकि कल्प्रिट जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो तो आपकी वहीं की वहीं है, एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड। डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के एलोपैथी में क्या है कि भाई ऊपर से बाहर से लो, पिल्स ले लो, ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्शन डालो एंड यू आर मेंटेनिंग योर B12, ठीक है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, साइलेंटली अंदर नर्व डैमेजेस हो रही है, ठीक है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्रैम्स आते हैं लोगों को, बर्निंग एंड सेंसेशन वो रहते ही रहते हैं, क्योंकि आपके नर्व्स का जैसे कि वायर है, वायर उसके ऊपर का जो लेयर है प्रोटेक्शन कवर, ठीक है, वो जैसे डैमेज होता है ना, इस तरीके से इसमें ये डैमेज होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, जो देखो ये सिम्टम्स ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ट्विचिंग, क्रैम्स आना, नमनेस, बर्निंग, बैलेंस प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मुझे वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बिकॉज उनको डेफिशिएंसी बहुत साल से होती है, ठीक है। फिर अल्जाइमर्स डिजीज बहुत खतरनाक है, ओल्ड एज में पहले होता था, लेकिन अभी क्या हो कि ये डेफिशिएंसी की वजह से 45 की एज में स्टार्ट हो गया है अल्जाइमर्स डिजीज। और इसमें मेमोरी प्रॉब्लम होता है, भूल जाता है फैमिली मेंबर को भी कि आप कौन हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ओके। एंड ये पार्किंसन डिजीज है, वो भी ओल्ड एज रिलेटेड है ये सारे डिजीज, लेकिन अभी इतनी कम उम्र में, मुझे 21 में साल में आया था, ठीक है। तो अगर मैं विटामिन B12 क्योर नहीं करती हूँ तो मुझे 15-20 साल के बाद पार्किंसन हो सकता है, मे बी, ठीक है, बिकॉज इट इन्वाइज न्यूरोलॉजिकल एंड द साइकेट्रिस्ट डिसऑर्डर, ओके। बिकॉज डिजीज ऐसे ही नहीं होता, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ कोजेज ऑफ द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जान लो। कौन से कोजेज है जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी लाते हैं? एक तो ऑटोइम्यून स्किन डिजीज या ऑटोइम्यून डिजीज कोई भी, ठीक है। इससे क्या होता है, अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम अपने पे अटैक करती है, ठीक है। अंदर ही वॉर चल रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। फिर माल एब्जॉर्प्शन, अभी मैं किस केस में वर्क करती हूँ, ये माल एब्जॉर्प्शन वाले केसेस में लेती हूँ, जिसमें 100% रिजल्ट हम लाके देते हैं, ठीक है। आपका एब्जॉर्प्शन क्लियर किया एंड यू आर गुड टू गो, ओके। अभी तीन थिंग, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है आपके स्टमक में, ये स्टमक में होता है, अगर इसकी कमी है तो आपको बाहर से विटामिन B12 पिल्स इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज ये इंट्रिंसिक फैक्टर वो क्या है कि विटामिन B12 बनाने में हेल्प करता है। ओल्ड एज उसमें भी एक्सेप्टेड है कि डिजनरेशन चालू हुआ है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, उन लोगों को भी बाहर से लेना पड़ेगा। सम मेडिसिन साइड इफेक्ट्स, जिसकी थायराइड है, डायबिटीज है, या कोई पेन किलर है, व्हाटएवर, एसिडिटी की दवाइयां हैं, ठीक है। फिर ये विटामिन C सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो टू मेंटेन योर गुड हेल्थ, एडवांस में, दैट आल्सो अफेक्ट योर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है। इसीलिए कम से कम एलोपैथी मेडिसिन जितनी हमारी बॉडी में जाए उतना ही अच्छा है, ओके। फिर पुअर लाइफस्टाइल, लेक ऑफ स्लीप, ठीक है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म एंड सर्जरी, सर्जरी किस ऑर्गन्स की, स्टमक की, लिवर की या इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो उन लोगों को विटामिन B12 बाहर से लेना पड़ता है। नाउ क्लियर, किसको बाहर से लेना पड़ता है और किसका विटामिन B12 क्योर रह सकता है, क्लियर यहाँ पे? बिकॉज ये क्लियर नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, सिर्फ B12 हुआ है, वो भी लाइफ टाइम मान लेता है कि भाई मुझे तो पिल्स इंजेक्शन लेना पड़े, ठीक है। लेकिन सोचो कि आपका बॉडी अगर रिपेयर हो सकता है, खुद ही B12 बना सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो वाई टू टेक द आर्टिफिशियल सपोर्ट? मेक सेंस? टाइप S in the chat box. ओके, या अर्श जी, ऑटो इम्यून, या आप क्वेश्चन Q&A सेशन में हम सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, ताकि लिंक ना टूटे, एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न, ओके। सो लेट्स मूव अहेड।
तो दिस इज आई हैव क्लियर कि ओनली वेजिटेरियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द विटामिन B12, वो तो क्लियर हो गया है ना? ठीक है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके ओके, ठीक है. यार टेम्पो बनाए रखो यार, इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, इतना अच्छा कौन समझाएगा आपको? ठीक है. सो या ओके ओके ओके. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट. ये स्लाइड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, बिकॉज बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, मुझे हुआ था, दैट्स वाई मुझे पता चला कि इतना सीरियस है. सच में मैं बता रही हूँ. there are so many doctors out there and like maybe there are lot cases, इसके लिए मे बी टाइम नहीं मिलता होगा. ठीक है, और इतना ऑब्जर्वेशन नहीं होगा. ठीक है, इसीलिए विटामिन B12 को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन ये लाइटली लेने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ये दोनों को क्यों हो रहा है, इसका ये रीजन है. ठीक है, बहुत सारे कोजेज हमने जान लिए कि ये डिजीज है, ये फैक्टर अवेलेबल नहीं, इससे तो विटामिन B12 होता है. लेकिन 70% लोगों को जो B12 हो रहा है वो ये फैक्टर्स की वजह से हो रहा है. 80%. ठीक है, केमिकल फार्मिंग वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, आरओ का पानी, ठीक है, फ्रीक्वेंट एलोपैथी पिल्स. अभी आई एम अ मदर ऑफ द लाइक, एक बच्ची की मैं माँ हूँ. ठीक है, और मुझे पता है कि न्यूबॉर्न बेबी से कुछ ना कुछ होता है, तो वी इमीडिएटली गिव द एलोपैथी पिल्स. मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन मेजोरिटी होता है, बिकॉज मुझे पता है कौन सा डाइट लेना है. आप समझ गए? और वो भी इतने सालों के बाद पता चला, इतना सारा इन्वेस्ट करके, इतना सारा ऑब्स्टेकल्स आए मेरे लाइफ में, एवरीथिंग. ठीक है, सो कोई भी एलोपैथी पिल्स है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करती है. ठीक है, एंड जहां पे डाइजेशन पुअर, एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड, तो B12 आएगा ही आएगा. और नॉट ओनली B12, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए बनाई है भगवान. तो आज B12 आया, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा. एग्री? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई जस्ट वांटेड टू गिव एडवाइस कि इफ यू हैव अ टाइम एंड स्पेस, ग्रो योर फूड. इफ यू हैव टाइम एंड स्पेस, रिस्पेक्टफुली. ठीक है, ग्रो योर ओन फूड एंड ईट. ठीक है, दिस इज द बेस्ट लग्जरी अगर बहुत सारे डिजीज से बचना चाहते हो. ठीक है, अगर नहीं कर रहा है, नहीं ये होने वाला, तो भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज मैंने ऐसा ही सॉल्यूशन ढूंढा है. इसमें ही हम रहने वाले हैं. केमिकल फार्मिंग वाले फ्रूट्स वेजिटेबल ही खाना है, आरओ का पानी ही पीना है, बिकॉज अगर नॉर्मल पानी पियेंगे तो स्टोन हो जाएंगे. ठीक है, तो इसमें ही रह के कैसे विटामिन B12 मेंटेन करें, तो वो हमारे प्रोग्राम्स में हम सिखाते हैं. ठीक है, सो डोंट वरी विद दिस. तो दिस इज द बिगेस्ट थिंग, एंसेस्टर लाइफ वर्सेस करंट लाइफस्टाइल. तो एंसेस्टर्स को क्यों B12 नहीं होते थे अर्ली एज में? क्योंकि वो फ्लोइंग वाटर होता था, प्योर वाटर. इतना सारा गंदगी वाला नहीं था पहले पानी. अभी तो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वी हैव टू लिव लाइक दिस. फिर हार्ड वर्क रहता था, ताकि वो उनको भूख भी बहुत अच्छी लगती थी, डाइजेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता था. ठीक है, एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी पहले, एंड अभी भी फिर से वेव स्टार्ट हुआ है ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग का, एंड आई लाइकिंग इट. ठीक है, एंड आई प्रमोट इट, because I know a lot of diseases are happening due to the chemical farming. Okay, and natural lifestyle. हमारी दादी नानी कुछ भी है, कुछ भी छोटा मोटा होता था, तो we just treat first with the home remedies. ठीक है, we are not taking immediately allopathy pills for a smaller health issue. ठीक है, that's make a very big difference. एंड अभी की क्या है, आरओ का पानी, 20% हार्ड वर्क, 20% बता रहे, क्योंकि आपकी मेरी सभी की वर्किंग ऑन द लैपटॉप्स. ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग, केमिकल वाले फूड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स कलेक्ट हो जाते हैं, गार्बेज कलेक्ट होता है. ठीक है, इससे एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है. एंड मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल. ठीक है, शायद पानी देने वाले भी होते हैं घर पे किसी किसी के, सो दैट्स द थिंग. ओके, और इसमें हम बीमारी लाते हैं.
ओके, सो हाउ माल एब्जॉर्प्शन अकर इन द बॉडी, तो कैसे होता है हमारी बॉडी में? गुड फंक्शनिंग ऑफ द बैक्टीरिया चाहिए, इंटरनल स्टमक में अच्छे बैक्टीरिया चाहिए, इंटेस्टाइल के बैक्टीरिया चाहिए एंड सलाइवा, ठीक है, ताकि अगर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स नॉट ओनली अबाउट गट, गट तो एक ही ऑर्गन है इंटेस्टाइन, अगर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो ही आपकी विटामिन B12 आप जो भी फूड खा रहे हो उसमें से प्रॉपर बॉडी बना भी पाएगी और एब्जॉर्ब भी हो पाएगा। वाई आई मैंने मिशन बना लिया है कि लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का तरीका देना। क्यों? क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट करके जो चीज है ना वो बहुत रेयर होती थी पहले। अभी बचपन से लेके इतनी सारी कफ सिरप ये वगैरह वगैरह, कुछ भी हेडेक के लिए पिल्स, गैस के लिए ले ली, एसिडिटी के लिए ले ली, कुछ भी हो रहा है तो सारे दवाइयों का कचरा आपके लीवर में स्टोर हो रहा है। इसके साइड इफेक्ट में बड़े बड़े डिजीज आते हैं, ठीक है, और लीवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी, ठीक है, और इसकी वजह से ड्रग टॉक्सिसिटी होती है, इसीलिए लीवर फेलर, सिरोसिस ऑफ लीवर, ये सारे एज डिजीज, डेथ रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, जो अर्ली उम्र में हो रहे हैं एंड उसमें फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन करने का वो आ जाता है एंड इसमें इतना भी सक्सेस रेशियो नहीं है। आप समझ गए? तो दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू वर्क ऑन द प्रिवेंटिव एजुकेशन, इतना एजुकेट करूं ताकि आपकी बॉडी में कम से कम दवाइयां जाए, और अगर दवाई भी जाए तो उसको निकालने का तरीका भी हम बताते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज द bitter truth about the wellness industry, I do not promote any wellness products बिकॉज मैं ही बताती हूँ ना कि हमें कोई आर्टिफिशियल पिल्स भी नहीं चाहिए। आप समझ गए ये क्यों? क्योंकि वो लोग थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, थ्रू द कंटेंट एंड एवरीथिंग दे आर प्रमोटिंग कि भाई योर फूड इज नॉट इनफ, आपके फूड में से सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? आप ही सोचो, ऐसा हो सकता है क्या कि फूड में से न्यूट्रिशन नहीं मिले? मेक सेंस? एग्री? ठीक है, तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आपके खाने पीने में से अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्लीज। क्यों? अगर ऐसा ही होता तो हम क्यों इतनी ग्रोसरी लाए, क्यों बाजार में जाए, फ्रूट्स महंगे महंगे खरीदे? इससे अच्छा ये सस्ता पड़ेगा पिल्स लेना। ग्रोसरी रखो, उसको मेंटेन करो, कुकिंग करो 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, ठीक है, तो एक थाली या डिश ले लेने की, विटामिन E, C, B12, D सारे विटामिन सप्लीमेंट्स ले लेने के अच्छे ब्रांड के एंड यू आर जस्ट गुड टू गो। चलेगा? चलेगा? बहुत इजी वे है, शॉर्टकट, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में देखना शॉर्टकट पे जाओगे तो आपको टेम्पररी अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ भाई अभी तो मेरा क्योर हो गया है, पहले आया था अभी नहीं है। कैसे क्योर किया आपने? सप्लीमेंट ले लेके, ठीक है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। सो बी अ थॉटफुल ह्यूमन बीइंग। इफ मिल्क इज अवेलेबल, वो लोग बोलते हैं कि मिल्क में ये वो डालते हैं, ये है, अरे भैया ये जमाने में जो मिल रहा है वो खा के पी के चला लो, बिकॉज वाई, बिल्कुल भी बंद कर दोगे तो दूसरे प्रॉब्लम आएंगे एंड कुछ नहीं, इससे अच्छा है कुछ मिल रहा है। मेरी तो यही थिंकिंग है, ठीक है। सो मैं तो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रही हूँ, ठीक है, ट्रेडिशनल रूट है वो पकड़ के चलो, दादा नाना जिए, हम भी जिएंगे अच्छे से, ठीक है। सो हु हैव टू टेक द पिल्स एंड इंजेक्शंस? ओके, अ पर्सन हु हैज इंटेस्टाइनल और स्टमक सर्जरी, उनको बाहर से लेना पड़ता है B12, ये मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। किसी को लीवर का डिजीज है, कोई बड़ा डिजीज है, ठीक है, जिसको ऑटोइम्यून डिजीज यानी कि सालों से आपको कोई बीमारियां हैं, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू द ऑटोइम्यून डिजीज। बहुत पुरानी हो जाती है तो ऑटो इम्यूनिटी में वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें आर्थराइटिस भी आते हैं, बहुत सारे टाइप के इसमें ऑटो इम्यून डिजीज आते हैं, ठीक है। ओल्ड एज पीपल आफ्टर 60, हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, आप समझ गए, तो उनको बाहर से लेना पड़ता है, इसमें 50-50 रिजल्ट आता है।
जेनेटिक डिसऑर्डर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि हमारे जो इंटेस्टाइन है गट उसमें छाले पड़ते हैं, जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं ना, तो उनको विटामिन B12 बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। स्टमक डिसऑर्डर, ठीक है, तो उनको क्योंकि स्टमक डिसऑर्डर होगा तो उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर भी अफेक्टेड होगा, सेल्स डैमेज होंगे, ठीक है, तो उनको भी बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर कि किसको बाहर से लेना पड़ता है और किसका विटामिन B12 डेफिशिएंसी 100% क्योर हो सकता है, ठीक है। क्लियर, टाइप सी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज ये मुझे चाहिए आपको, आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो। नो अर्श जी, व्हाट हैपेंड? ओके शुभू, ओके सी अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ओके, सो दिस इज द थिंग, crystal clear information, okay. Now if someone wishes for a good health, one must first ask oneself if he is ready to do away with the reasons for his illness. Only then I can help you, okay. अगर आप ready हो then only someone can help you to fix your problem, okay. So how many are interested to enroll in the program, in the mentorship, want to learn about this thing कि how to cure vitamin B12 from the roots? Just show your interest. How many are you really seriously to work upon your health in 24? Saumil ji, Supriya ji, Vidhi ji, Harsh ji, amazing. So many people, huh? So many action takers. Amazing. Abhishek ji, great. Okay. So I'm just giving you a brief introduction and then like I will give you कि किस तरीके से मैं क्लाइंट को हमारे प्रोग्राम में लेती हूँ, बिकॉज हम 100% रिजल्ट की गारंटी देते हैं, तो हम काफी क्लाइंट का भी हिस्ट्री चेक करके ही उनको लेते हैं डिटेल में, ठीक है। सो बेसिकली ब्रीफ में बता देती हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि इस एम्बियंस में ये कल्प्रिट है और रूट कॉज क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और हमारे जो भी प्रोग्राम में डाइट है या वॉट एवर द मॉडल्स है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट बजट के मॉडल्स हैं, डिफरेंट सर्विस है, ठीक है, ताकि जिसको जो कस्टमाइज बना के ट्रीटमेंट लेनी है वो ले सकते हैं। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, आपको सिखा देते हैं वन टाइम कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को रिसेट मारना है, ताकि लाइफ टाइम आपका बॉडी आपके ही घर के फूड से सारे न्यूट्रिशन मेंटेन कर पाए, ओके। साउंड इंटरेस्टिंग, एंड वो भी कोई बोरिंग डाइट नहीं, 20% थोड़ा वो रहेगा, 80% आपका फेवरेट डाइट रहेगा। दिस इज द रेशियो एंड 80/20, ठीक है। ये बहुत है बिकॉज बीइंग अ गुजराती वी आर वेरी फूडी, ठीक है, एंड आई डोंट वांटेड टू डू अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेगन कीटो डाइट, ओके। Okay, sound interesting? I in the chat box. Type I in the chat box. Amazing. Okay, fine. Okay. अभी तो सब बोलते हैं हाँ इंटरेस्टेड, लेकिन देखते हैं कौन करने वाला है इम्प्लीमेंटेशन, ओके। सो दिस इज अ फ्री, इसमें हम क्या करते हैं, हैबिट फॉर्मेशन, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं, रूटीन फिक्स करवाते हैं, बॉडी कैसे वर्क करता है, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज में क्या डाइट लेना है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज प्रोग्राम, ताकि आपका मसल्स की स्ट्रेंथ भी इतनी फिट रहे, ताकि आपको एक ओल्ड एज वाली फीलिंग ना आए कि भाई यार अभी तो मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है, इससे भी कॉन्फिडेंस लूज होता है, ठीक है। एंड डाइट प्लान एंड एवरीथिंग, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइट आएगा, डिफरेंट ऑर्गन का, ठीक है। नाउ ये बिजी प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, इस तरीके से पूरा प्रोग्राम बना है, ताकि बिजी प्रोफेशनल का भी क्या दे डोंट हैव टाइम, तो इस तरीके से सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि कैरियर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और अपनी हेल्थ को भी बहुत फिट रखे, ठीक है। प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ताकि लाइफ टाइम का मैं आपको हैक दे रही हूँ। एंड ओनली होम फूड, किचन से ही सॉल्यूशन होगा, कोई सप्लीमेंट लेने ला, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, ठीक है, सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बाय करने होंगे,
ठीक है, नो आयुर्वेदिक bitter things you have to eat. So this is the thing, before you heal someone, ask him he is willing to give up the things that he made him sick. ठीक है, जिस लाइफस्टाइल की वजह से आप बीमार हो रहे हो, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो. ठीक है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. ठीक है, एंड देन ये कंसल्टेशन है, 30 मिनट का कंसल्टेशन. आप मेरे सपोर्ट नंबर है यहाँ पे. ठीक है, आपके पास होगा ही द पब्लिक वेलनेस का, जिस ग्रुप में हो इसलिए होगा ही, 7048317894. ठीक है, तो ये श्री पटेल हैंडल कर रही है. तो एक कंसल्टेशन फ्री है. ठीक है, जहाँ पे मैं आपकी पर्सनल हिस्ट्री ले रही हूँ, क्या है क्या नहीं, कितना रिजल्ट आ सकता है, कैसे ला सकते हैं. ठीक है, और कौन से मॉडल आपको सूट होंगे. ठीक है, तो आप ये नंबर पे जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, यू कैन बुक योर कंसल्टेशन. और जिस दिन और जो भी टाइम स्लॉट आपको या हमारी टीम से प्रोवाइड होंगे, वो एडजस्ट करके आप ले लो, जिसको भी एनरोल होना है प्रोग्राम के. तो प्रोग्राम की सारी डिटेल्स कंसल्टेशन में मैं बता दूंगी. ठीक है, और कस्टमाइज मॉडल हम बना के देंगे, ताकि जिसको जो सर्विस लेनी है, जिसका जो बजट है, वो अपनी हिसाब से अपनी हेल्थ को ठीक करे. ठीक है, एंड यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ, सो यू हैव टू टेक योर फाइनल डिसीजन. ओके, so you have to decide, invest in your health for now or pay for the hospitals later. Okay, and if you don't make time for your wellness, you will force to make a time for your illness. This is a very true. ठीक है, now I will ask a question answer session. किसको कोई question है, type in the chat box. Type your question in the chat box. Okay, Subbu ji, कैंट वाटर इज सेफ. सी लाइक वाटर में, आरओ के पानी में, आई डोंट नो व्हाट कैंट अच्छा है या नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ. जो अल्ट्रा वायोलेट यूवी रेज वाला प्योरिफिकेशन आता है ना, दैट इज गुड. और या तो बॉइल्ड वाटर इज गुड. ठीक है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अल्कलाइन वाटर, काइंड ऑफ कैंगन वाटर, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो सेलिंग. लेकिन उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहे हैं. दैट्स द केसेस आई एम सीइंग. ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस यूवी प्योरिफिकेशन वाला कस्टमाइज. एनी अदर क्वेश्चंस? इज इंसोमिया ऑल्सो ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी? या हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन नॉट प्योर. देर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इंसोमिया. लेकिन यस, जब B12 होता है तो इमोशनल और लाइक हमारे जो मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, ये बहुत बढ़ जाती है. Subbuji, I don't know any product, but customization is available nowadays in some brands. ठीक है, so you can ask you have to search uh, uh, different products कि भाई इसमें किस तरीके से customization हो सकता है. Swapnil ji, please give details of the fees of the mentorship. The whole purpose of attending the session goes in the. स्वप्निल जी, आपको एक कंसल्टेशन बुक करने पड़ेंगे, बिकॉज हमारे जो मॉडल्स हैं, ठीक है, वो 5000 से स्टार्ट होके 30,000 तक के हैं. ठीक है, तो जब पर्सनल कंसल्टेशन वो फ्री ही रखा है, ताकि हमें पता चले क्लाइंट को कौन सा सूट होगा. बिकॉज हमें टेस्टिमोनियल और फीडबैक बहुत अच्छे पब्लिश कर दे हैं, ताकि हम फिल्टर्ड क्लाइंट रहे, सीरियस क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं. इसीलिए आई एम नॉट यहाँ पे कुछ एनरोल करवा रही हूँ. ठीक है, so you have to book a personal consultation. 30 मिनट में I will take your history, suggest your detailed models अच्छे से. ठीक है, and then you can enroll in the program. और दूसरा भी मैं बता देती हूँ, every month सिर्फ 10 लोगों के साथ मैं काम करती हूँ. ठीक है, तो आपको इंटरेस्टेड है वो कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर लेना.
ठीक है, जैसे ही 10 स्लॉट होते हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ बुकिंग ओपन हो जाएगी. गेटिंग इट क्लियर? Yes, Dr. Urmi ji. 1 minute. Yeah, Dr. Urmi ji. Yeah. There are several autoimmune and genetic disease, and you said that in any such case, this plan doesn't work. Yes, because autoimmune skin disease में अंदर अंदर ही इतना लाइक चल रहा है, ठीक है, और उसके लिए मेडिसिन भी चल ही रही होगी लोगों की. तो जब मेडिसिन चल रही है तो वो एब्जॉर्प्शन अफेक्ट कर रही है, तो इसीलिए हमारा जो प्लान है वो 100% नहीं वर्क करता. ठीक है, मे बी 20-30% उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो 100% नॉर्मल केस में सारे सिम्टम्स ही चले जाते हैं और रिपोर्ट्स में भी B12 लेवल बहुत नॉर्मल दिखता है, वो इन केसेस में नहीं हो सकता. ओके, एनी केस, एनी क्वेश्चन फर्दर? Anybody wants to ask something or talk with me? No question, final? Okay. So I'm just ending the webinar with the one beautiful prayer. Just, okay, this is the complimentary. Okay. See, whenever you have any health issue or anything, और मे बी ऑटोइम्यून स्किन डिजीज है या जेनेटिक है, कुछ भी है, यहाँ पे हमें पता नहीं किसको क्या है डिटेल में. ठीक है, दिस इज अ जनरल प्रेयर. जिसको डिजीज है उसको भी, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको भी. फर्स्ट थिंग, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. एंड आपको खुद को ही बोलना है, आई लव माई सेल्फ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, बिकॉज ये बॉडी अच्छी है तभी जाके यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू. ठीक है, ये 22 साल की सफरिंग ने मुझे सिखाया है, एंड दिस इज अ पावर ऑफ सिंगल प्रेयर. और आपको दूसरे को थैंक यू हम बहुत बोलते हैं यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, लेकिन अपने आप को थैंक यू नहीं बोलते. तो थैंक यू टू योर सेल्फ, बस आपके सारे सेल्स सुनते हैं वो. ठीक है, तो जब ये प्रेयर स्टार्ट करोगे तो सारे सेल्स हैप्पी फील करेंगे. आप किसी को थैंक यू बोलते हैं या आपको कोई थैंक यू बोलता है, यू फील गुड. ठीक है, इफ यू फील गुड, योर सेल्स आर हैप्पी. इफ योर सेल्स आर हैप्पी, दैट कैन क्योर एनी डिजीज. एग्री? So this is a very, very powerful prayer I have shared, and I have practiced this prayer like whenever, like I am healing myself. Okay. So how many of you loved my webinar? Share your feedback here, and we will share you the feedback link. Okay. See, I have here spent a most important time of mine with you and shared amazing information. So take a 2 minutes of time and share a valuable feedback given link. My team will send you a feedback link in the group. Please take your 2 minute time and share your amazing feedback so that I can reach out to so many people. Okay, so that's the help I need from your side. Okay. Amazing. Thank you so much, Saumil ji. Yeah, Dhanashri ji, and yeah, Swapnil ji. Okay. ठीक है, and whoever who wanted to book a consultation without any hesitance, just book the consultation. Whatever the possible thing I can help you with my diet plan, I will suggest you that model. So don't worry. If you have a disease, okay, so no issue with that. Even if you can, 30-40% you can have your health can improve. Okay, so that also it's a great thing.
Okay. Yeah. God bless you, everyone. God bless you. Yeah. And excited to work with the serious people. Yeah. Amazing. I'm just taking the screenshot. Thank you. Yeah. Okay. So goodbye, everyone. Okay. Yeah. Bye.